Hello everyone, today we are going to start our next exercise 8.3 of class 8. In this exercise, we are going to do the questions of compound interest. Compound interest is equals to A minus B. This is the formula of compound interest. What is A? A is amount. How can we find amount? Amount P bracket 1 plus R upon 100 whole part T. Only this whole part T. P is the principal amount, R is the rate of interest and T is the time. And what is compound interest? The term compound interest. What is meant by compound interest? Compound interest is the addition of the interest to the principal sum of a loan or deposit. Or in other words, we can say interest on interest. Right? This is the compound interest. So this is the formula. These formulas we will use in the exercise. So question number 1, calculate the amount and the compound interest. First of all, we will find amount, then we will find out the compound interest, right? A part is rupees 10,800 for 3 years at this rate of interest per annum compounded annually. Okay. So this is for annual, if annually given. So in first part they have given annually, and second one we have the formula for semi-annual, right? Semi-annual. So second formula you can write A is equals to P bracket 1 plus R upon 200 and par 2T. These two formulas, right? So now we will do our question number 1. So first A part, we have principal amount, that is rupees 10,800, right? Next we have rate of interest, that is 12 to 1/2%, that will be equal to this 12 2s are 24, 24 plus 1 25/2%, right? And time they have given us 3 years. These are the terms we will use to find the amount. So formula of amount is P bracket 1 plus R by 100 par T, because they have given compounded annually. So we will use this formula. Now amount A as it is 10,800, principal amount. So we have written this. Then 1, we will write 1 as it is, R, that is 25/2, right? 100 here we will multiply by 100, right? T, this means 3. Now if cutting is possible, then we can do cutting. Cutting is possible only here, that means here only. These terms can be cancelled. 25 ones are 25, 25 fours are 100, right? So A is equals to 10,800 as it is. So 1 plus this is 1. Now no cutting. So 2 fours are 8. Par 3 we will write as it is. So next again A is equals to 10. First of all we have to solve the full bracket, then we will do multiplication with this. So we will take LCM. Here is 1 and 8, LCM is 8. 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8. 8 multiply 1, that is 8. 8 divide by 8, that is 1. 1 multiply 1, that is also 1. Par 3. 8 plus 1, this is 9 now. 9/8 whole par 3, right? Again A is equals to 10,800. 9/8 par 3, this means 9/8 we have to 3 times, right? We have written 3 times. If again cutting is possible, then we can do cutting. Now we can do 2 5s are 2 4s are 00 as it is. 2 4s are again on the table of 2. 2 2s are 4, 2 7s are 00 as it is, right? Again 2 2s are 4. Again cutting is possible. 2 1s are 2,
So again cutting, we can write 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 0, right? Again cutting is possible. So here 2 4s are, now 2 6 are 12, 7s are, again this is 0, so 2 5s are, right? Now cutting is not possible. Remaining terms are 6 7 5 multiply 7 2 9 upon 8 4s are 32. So by multiplying we get 492075. Divide by 32. When we will divide 32 by this, we will get rupees 15377.34. 15,377 rupees 0.34 paise. This is the amount. Now we have to find out the compound interest. So formula of compound interest, A minus P. A is this. So we will write this term here and minus principal. When we will do subtraction, we will get 4577.34. So this is compound interest. This is our first part, A part, answer, right? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है हमें, तो ये हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख ली. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था वो लिख लिया. टाइम दे रखा था वो लिख लिया. एनुअली बोला था तो एनुअली फॉर्मूला ये होता है, हमने लिख लिया, राइट. उसके बाद सारी टर्म्स पी की जगह उसकी वैल्यू पुट करी. ये ऐसे लिखा, आर की जगह था मेरे पास 25/2. तो इसका मतलब जो r/100 है, मैं यहाँ साइड पे आपको बता रही हूँ. आप ये सोचोगे कि नीचे ही 2 क्यों लिखा, तो r मेरे पास था 25/2 है ना. यहाँ मैंने लिखा r/100, मतलब इसको, इस r/100 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. तो इस r की वैल्यू मेरे पास क्या थी, यही थी. तो एक ही बात है, मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, राइट. ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया है. अब इसकी कटिंग पॉसिबल, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो यहीं पे कटिंग पॉसिबल. मैं इसके साथ कटिंग नहीं कर सकती, मैं इसके साथ नहीं कर सकती कटिंग. इतना ही मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में था तो इसकी कटिंग पॉसिबल थी, मैंने कर दी. उसके बाद यहाँ कटिंग करने के बाद इतना आया, एलसीएम लिया. एलसीएम लेके इसकी पार थी 3. इसका मतलब इसको मैंने 3 टाइम्स लिखना था. मैंने 3 टाइम्स लिखा. जितनी मेरी कटिंग पॉसिबल थी मैंने कटिंग कर दी. अगर आपको कटिंग से लग रहा है कि आप कटिंग, लेकिन जब आप फिर डिवाइड करोगे फिर भी मुश्किल आएगी, है ना. तो हमने सारा सॉल्व करके ये अमाउंट आई मेरी A माइनस P. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया A माइनस P. सॉल्व करके मेरे पास आ गया A पार्ट का आंसर, राइट. ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं B पार्ट. B पार्ट में अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट ये दे रखी है, टाइम दे रखा है और ये दे रखा है मुझे 10%. ये भी दिया उसने कंपाउंडेड एनुअली, राइट. अब देखो बी पार्ट में उसने पहले तो हमें दे रखी है प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 रुपीज़, 18,000. फिर आर दे रखी है दैट इज़ 10% एंड टाइम दैट इज़ 2 years एंड हाफ ईयर अलग से दे रखा है, 2.5 years दे रखे हैं. अब देखो पार में, मैं पार तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे होल जो है वो पहले पार में लेके चलेंगे. मतलब 2 years का अलग निकलेगा, हाफ ईयर का अलग निकलेगा. जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो यहाँ पे ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. सबसे पहले लिखोगे फॉर 2 years. पहले 2 years का निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, अमाउंट फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि उसने एनुअली बोला है, तो फॉर्मूला हमें हर बार लिखना ही होता है, राइट. अब P की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी 18,000. 1 ऐसे ही, ये 10/100 है. T मैंने 2 लिया क्योंकि 2 years का निकाली, 0 से 1 0 कैंसिल कर दी. यहाँ आ गया 18,000. अब यहाँ 10, इसके अपन में 1 है, 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10. 10 को 1 से किया 10, 10 × 1 10. इधर तो 1 नहीं आएगा क्योंकि 10 को 10 से करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से किया, इतना ही आ गया.
तो ये हो गया 18,000, ये आया 11/10 की पावर 2, राइट। इसका मतलब 11/10 को मुझे क्या करना है, 2 बार यहाँ पे लिखना है, ऐसे ही 11/10, 0 से 0 कैंसिल हो गई, राइट। अब 11 11 सा 20, 121 और ये 180 बचा। पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ 121। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा ये मेरे पास आई अमाउंट। सिर्फ कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अभी हाफ ईयर मेरे पास पड़ा है, मतलब 6 मंथ्स। हाफ ईयर मीन्स क्योंकि पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हाफ ईयर मेरे पास अभी पड़ा है। तो उस हाफ, ये मेरे पास इंटरेस्ट लगा के इतना आ गया। अब उस हाफ मंथ का इंटरेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, तो उसके लिए इंटरेस्ट मुझे, क्योंकि हाफ ईयर के लिए भी मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं मेरा सफिशिएंट होगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लूँगी किसका, 4 6 मंथ्स, ठीक है। जितने रह गए मेरे पास लास्ट 6 मंथ्स, इसको निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना था मेरा, अब P मेरा यही वाला आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन बोली तो मैंने क्या बताया आपको कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जितनी अमाउंट बनी रहती है उसी के ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट लगता है। ये नहीं कि जितनी अमाउंट दी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जितनी अमाउंट मेरी बने जा रही है सम हो के, उससे आगे इंटरेस्ट लगता जाएगा जब तक हम उसे पे नहीं करते, राइट। तो ये 21780। फिर अब मेरी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, पहले लिख देती हूँ आपको। दिस इज 21780, राइट। तो आर कितना है मेरे पास, 10% है, राइट। फिर टाइम मेरे पास दे रखा है 6 मंथ। ये तो दे रखे हैं उसने मंथ्स में, मुझे चाहिए ईयर्स में। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन गया, हाफ ईयर, है ना। वैसे भी वहाँ बचा ही हुआ था मेरे पास, हाफ ईयर्स ही थे, तो हाफ ईयर बचा हुआ था, राइट। हाफ ईयर बन गया, ऐसे नहीं आएगा। अब मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो वैल्यूज़ में पुट करूँगी। P मेरे पास है 21780 इंटू आर कितना है मेरे पास 10, T कितना है हमारे पास 1/2 और अपॉन में 100 तो है ही मेरे पास। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 2 को जब मैं इसके साथ डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 1089। मतलब जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया ना, वो मेरे पास आया 1089 रुपीज़, इतना आया। अब मतलब मेरी जो टोटल अमाउंट बनेगी ना पूरे ईयर्स की, जितने उसने दे रखे हैं 2.5 ईयर के लिए, अमाउंट 4 ईयर्स कितनी बनेगी, एक तो वो जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट 2 साल की बनी थी वो, प्लस ये हाफ ईयर की जो बनी, ये इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कितनी बन गई मेरे पास, 22869 रुपीज़, ये अमाउंट बनी हमारे पास। टोटल अमाउंट तो मुझे पता चल गई। फिर से हमें क्या पता करना था, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कैसे करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितनी बनी 22869, प्रिंसिपल अमाउंट में से कर दो माइनस, प्रिंसिपल अमाउंट को कर दो माइनस, तो जितना बचा दैट इज़ आर कंपाउंड इंटरेस्ट। So this is our answer of B part, right? If any confusion in AB part, then you can tell me. Next 3 parts we will do in our next lecture, right? Thank you.